Now, from today onwards, Air India will become the country's sole full-service carrier, marking the end of an era that saw India's full-service airline market shrink from 5 carriers to 1 over 17 years. Meanwhile, my colleagues Brian Anthony Thomas and Arzu Seth have been reporting from Terminal 3 at the Indira Gandhi International Airport since morning, speaking to passengers, gauging their opinion on this merger, how it's affecting them, and also how some bonuses that they've already and some benefits that they've already accrued from Vistara, whether they will transfer it or not, whether they're well dispatched or not. They filed some ground reports. Let's take a look. Yes, the merger has finally happened between both Vistara and Air India, and yes, I am at the very hub. If you see, I am at the IGI Terminal 3 airport, and yes, domestically the first scheduled flight, that is the AI 2984, departed from Mumbai to Delhi around 1:30 a.m. today morning, utilizing the A320 aircraft. And post this merger, also Vistara flights now operated by Air India will bear codes in the AI2 followed by series of numbers. Now, yes, we are at the IGI airport, and there has been top 10 merger changes as well, where it has become Vistara Air India merger, and then the brandings and operations also have become different. Like if I show you also, you see the branding and operations have been changed, where Vistara's operations are now going to be transferred to and managed by Air India. There will be flight numbering that is different, like that AI 215 has become, UK 753 has become AI 2753. So this is the way, one of the changes that has happened. And then the loyalty program integration also, that is the Club Vistara loyalty points, will be transferred to Air India's flying returns program. Then there will be booking system changes also, that will be where all bookings will be made via Air India website, and existing Vistara bookings have be automatically being transferred. There is a small kiosk a counter place has been made, where you see the employee also of Air India Vistara merger is there, and here also it reads that there is an important update about Vistara Air India joining wings, and all check-ins will be proceeded at the Air India counters. And yes, like it said also, all bookings will be made via Air India website. Existing Vistara bookings have also been transferred. Now there will be difference in customer services as well. That will also become different in terms of the merger that has happened. And there will be some changes as well, like I'll show you here also. And you see this is the airport as well. And then yes, talking about the fleet and crew, there will be cross-utilization of pilots as well, and cabin crew with Vistara's fleet being operated under Air India's course. The service continuity will also be one of the big change. Credit card benefits will also be there. Route network expansion. One of the biggest reason to do this is the route network expansion, and then there will be employee transition as well. So these are the top 10, big changes in terms of the merger that has happened between Vistara and Air India. That will be important, and it has scheduled the domestic flights schedule from today morning itself. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Ankush for NewsX. विस्तारा अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर जो है वो हो चुका है, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम आईजीआई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तस्वीरें यहाँ की भी दिखाएंगे और जानकारी देंगे आपको किस तरीके से अब बदलाव जो है हो गया है, और आपको बताएंगे कि विस्तारा ने 9 साल सर्विस जो है वो पैसेंजर्स को दी है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अगर अब की आपको चेंजेस की बात करें तो देखिए किस तरीके से एयर इंडिया और विस्तारा देखा जा सकता है, क्योंकि जो कोड नंबर था, अगर पहले विस्तारा का कोड नंबर की बात करें तो देखिए विस्तारा कोड UK 753 था, लेकिन मर्जर के बाद AI 2753 हो गया, यानी कि आगे जो 2 नंबर है वो ऐड हो गया है। ये बदलाव कोड में आया है, और इसके साथ ही तमाम चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और इस मर्जर को एयर इंडिया की रणनीति जो है वो बताया जा रहा है। इससे एयर इंडिया जो ग्रुप है एयरलाइन, उसको और ज़्यादा मजबूती जो है वो मिलेगी। फिलहाल पैसेंजर्स के लिए भी ये इमोशनल वक्त है, क्योंकि
विस्तारा को गुड बाय जो है वो पैसेंजर्स ने कहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काउंटर्स जो है वो भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को गाइड जो है वो किया जाए, क्योंकि ये नई चीज़ है और इसी के लिए आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से मर्जर जो है वो यहाँ पर हुआ है और ब्रांडिंग में भी बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विस्तारा फ्लाई द न्यू फीलिंग और उसके साथ ही एयर इंडिया का लोगो जो है वो भी नजर आ रहा है। उसी के साथ ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो दी गई हैं कि विस्तारा एंड एयर इंडिया जॉइंस विंग्स, ऑल चेक-इन्स विल बी प्रोसीड एट द एयर इंडिया काउंटर्स। की यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और इंडिया और विस्तारा जो एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हुआ है उससे कुछ खास असर नहीं होगा, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो उसी तरीके की पैसेंजर्स को मिलती रहेंगी और बेहतर सुविधाएं जो है वो देने की कोशिश जो है वो ये मर्जर करेगा। फिलहाल देखना होगा कि पैसेंजर्स के लिए क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि देखने को जो मिल रहा है कि आज पहली फ्लाइट जो है वो दोहा और मुंबई के बीच में हुई है। दोहा से डिपार्ट हुई है और मुंबई पहुंची है। वो पहली फ्लाइट थी एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ। विस्तारा अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर जो है वो हो चुका है और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम IGI एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तस्वीरें यहाँ की भी दिखाएंगे और जानकारी देंगे आपको किस तरीके से अब बदलाव जो है हो गया है और आपको बताएंगे कि विस्तारा ने 9 साल सर्विस जो है वो पैसेंजर्स को दी है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और अगर अब की आपको चेंजेस की बात करें तो देखिए किस तरीके से एयर इंडिया और विस्तारा देखा जा सकता है, क्योंकि जो कोड नंबर था, अगर पहले विस्तारा का कोड नंबर की बात करें तो देखिए विस्तारा कोड UK 753 था, लेकिन मर्जर के बाद AI 2753 हो गया, यानी कि आगे जो 2 नंबर है वो ऐड हो गया है। ये बदलाव कोड में आया है और इसके साथ ही तमाम चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं और इस मर्जर को एयर इंडिया की रणनीति जो है वो बताया जा रहा है। इससे एयर इंडिया जो ग्रुप है एयरलाइन उसको और ज़्यादा मजबूती जो है वो मिलेगी। फिलहाल पैसेंजर्स के लिए भी ये इमोशनल वक्त है, क्योंकि विस्तारा को गुड बाय जो है वो पैसेंजर्स ने कहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काउंटर्स जो है वो भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को गाइड जो है वो किया जाए, क्योंकि ये नई चीज़ है और इसी के लिए आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से मर्जर जो है वो यहाँ पर हुआ है और ब्रांडिंग में भी बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विस्तारा फ्लाई द न्यू फीलिंग और उसके साथ ही एयर इंडिया का लोगो जो है वो भी नजर आ रहा है। उसी के साथ ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो दी गई हैं कि विस्तारा एंड एयर इंडिया जॉइंस विंग्स, ऑल चेक-इन्स विल बी प्रोसीड एट द एयर इंडिया काउंटर्स। की यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और इंडिया और विस्तारा जो एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हुआ है उससे कुछ खास असर नहीं होगा, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो उसी तरीके की पैसेंजर्स को मिलती रहेंगी और बेहतर सुविधाएं जो है वो देने की कोशिश जो है वो ये मर्जर करेगा। फिलहाल देखना होगा कि पैसेंजर्स के लिए क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि देखने को जो मिल रहा है कि आज पहली फ्लाइट जो है वो दोहा और मुंबई के बीच में हुई है। दोहा से डिपार्ट हुई है और मुंबई पहुंची है। वो पहली फ्लाइट थी एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। कहने का मतलब है अब ये एयर इंडिया बार बार यदि छोटी फ्लाइटों को मर्जर करती रहेगी तो लोगों को, जब तक आप देखो फ्लाइट मोड में जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक पब्लिक को फ़ायदा नहीं होने वाला। बाद में क्या है कि उनके किराए बढ़ जाएंगे, ऐसे पैसा ज़्यादा लेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से। तो जितनी ज़्यादा फ्लाइट, जितनी ज़्यादा कंपनियां होंगी ना, वो पैसेंजर के लिए, आम पब्लिक के लिए अच्छा रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये मर्जर होना नहीं चाहिए था। अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसका मैंने अभी पूरा विस्तार से देखा नहीं है। और विस्तारा 9 साल से चल रही थी, एज अ पैसेंजर विस्तारा का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? अच्छा मेरा ऐसा है कि विस्तारा सबसे चीपेस्ट फ्लाइट थी, मतलब जितनी फ्लाइट्स हैं ना उसमें सबसे सस्ती फ्लाइट यही थी। अब आप एयर इंडिया इसको हायर कर रही है तो ओबियसली इसके किराए बढ़ जाएंगे, तो आम पैसेंजर को बड़ी तकलीफ होगी। I feel Vistara was way better as compared to Air India, but now they have merged, so let's see what happens. But I like the Vistara. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.